बीआरएस लीडरों ने आज एडिशनल डीजीपी महेश भागवत से उनके दफ्तर में मुलाकात की और हालिया म्यूनसिपल इंतखाबात में बीआरएस लीडरों पर हुए हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि कल रियासत भर में हुए म्यूनसिपल इंतखाबात के दौरान चंद मकामात पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के कारकुनों के दरमियान हंगामे हुए थे। मकामी पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू की गई है। बीआरएस लीडरों ने कांग्रेस लीडरों पर हमले करने का इल्ज़ाम आयद किया। Absolutely reprehensible act by the sitting MP and the TPCC working president. Sitting MP is a person none other than Dharmapuri Aravind, and the TPCC working president is ex-MLA Mr. Jagga Reddy. Both of them, they have abused police officers in broad daylight by violating model code of conduct, which is absolutely reprehensible, absolutely illegal. What really shocks me is the police failed to take cognizance of that offence then and there itself. Police should have registered a suo motu case and picked up Mr. Jagga Reddy and his goons to police station and then locked them up in the police station and then ensured the smooth conduct of elections. That didn't happen at all. So police waited till 7:30 p.m. in the evening and to book a case. Now police are saying we have booked the case. 4 लेबर कोड्स के खिलाफ मुल्क भर में मजदूर तंजीमों ने एहतजाज किया। हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर मुनक्किदा एहतजाजी धरने में बाएबाजू जमातों के अलावा कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने भी शिरकत की। मजदूर तंजीमों ने कहा कि मरकजी हुकूमत मजदूरों के हुकूक को ख़त्म करना चाहती है। एहतजाजी मजदूर तंजीमों के नुमाइंदों ने 4 नए लेबर कवानीन को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर TPCC के सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने मुजाहिरीन के साथ एकजहती का इजहार किया। As per the call given by central trade unions, Congress party is totally supporting this bandh, this Nirasana Pradarshana. We are totally in support of the labor unions in the country. As directed by Kharge ji, Rahul Gandhi ji and KC Venugopal ji, we are participating. Total Congress party is supporting and participating in this today's 4 लेबर कवानीन के खिलाफ वरंगल में मजदूर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मार्च निकाला गया। साबिक रुकन असम्बली नरेंद्र ने एहतजाजी मार्च में हिस्सा लिया। इस एहतजाज में मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों के अलावा बाएबाजू जमातों के लीडरों कारकुन मौजूद थे। ऑल ट्रेड यूनियन की क़यादत में वरंगल रेलवे स्टेशन से चौराहे तक एक बड़ी रैली निकाली गई। इस एहतजाजी रैली में साबिक रुकन असम्बली नरेंद्र, ISTU के लीडर दरगंगोला दयाकर, AITUC के लीडर, दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। దేశవ్యాప్తంగా 12 సంవత్సరాల నుంచి పరిపాలిస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి మోడీ ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులందరి మీద ఉక్కుపాదం మోపాడు. ప్రధానంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సానుభూతి కూడా భారతదేశంలో కార్మికుల పట్ల ఈరోజు మోడీకి లేదన్నది ఇవాళ స్పష్టంగా ఇవాళ కనబడుతున్నది. కారణం 29 చట్టాలను రాసి 4 కార్మిక కోడ్లను తీసుకురావడం జరిగింది. దాని యొక్క నష్ట సారాంశం ఏంటంటే కార్మికులకు 8 గంటల నుంచి 10 గంటలు కేటాయించడం, అదేవిధంగా కార్మిక సంఘాలు లేకుండా రద్దు చేయడం, అదేవిధంగా వాళ్ళ హక్కులను అడగడందుకు కార్మిక సంఘాలు ఉన్నాయి, కార్మికుని గొంతును కూడా నొక్కి పెట్టడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా అదానీ, అంబానీ వాళ్ళ కోసం ఈ కార్మిక చట్టాలను తీసుకొచ్చి దేశవ్యాప్త కార్పొరేట్ కంపెనీలకు ఎర్రతివాచిని వేసినటువంటి మోడీ దీనికి తగిన బుద్ధి చెప్తాం. మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, వరంగల్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వ్యాపార వాణిజ్య సంఘాలన్నీ కూడా ఈ యజమానులందరూ కూడా కార్మికుల పట్ల ప్రేమ ఉంటే మోడీని గద్దె దింపే వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగించాలి. మరి కార్మికులు సార్వత్రిక సమ్మెను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నరేంద్ర మోడీ ఏదైతే కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తూ ఉన్నారో దేశవ్యాప్తంగా ఇలా కార్మిక వర్గం సమ్మెలో పాల్గొంటారు. ముఖ్యంగా దేశంలో కోట్లాది మంది కార్మికుల శ్రమను తీసుకుపోయి పెట్టుబడిదారుల దగ్గర భారీ చట్టంలో పెట్టడానికి కోసం సిద్ధమైంది. అందులో భాగంగా 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకొచ్చి ఆ లేబర్ కోడ్ల వల్ల కార్మికులకు ఉపాధి లేకుండా, మరి చట్టం లేకుండా, మరి వేతనం లేకుండా, మరి గ్యారెంటీ లేకుండా, అభద్రత భావంతో మరి ఏం లేకుండా ఇవాళ మోడీ ప్రభుత్వం కార్మిక చట్టాలు తీసుకొస్తా ఉన్నది. పార్లమెంట్లో బలాన్ని ఉపయోగించుకొని ఆ బలాన్ని మరి
కూర్చుబెట్టి ద్వారా ఆమోదించడం కోసం ప్రయత్నం చేసి ఏప్రిల్ 1 తారీఖు నుంచి ఈ దేశంలో కార్మిక साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने अपने क़याम के 24वें साल में दाखिल होने पर आज कमिश्नरेट दफ्तर में शानदार तकरीबात का अहतमाम किया। इस मौके पर साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एम रमेश IPS ने बतौर मेहमान खुसूसी परचम कुशाई की। तकरीबात सिर्फ जश्न तक महदूद न रहीं बल्कि पुलिस ने समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ समाजी खिदमात अंजाम दी। हंगामी सूरत हाल में मरीजों की जानें बचाने के लिए पुलिस एहलकारों ने रजाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमिश्नरेट कैंपस में आला हुक्काम के साथ पौधे भी लगाए। तेलंगाना राज्य में राजधानी हैदराबाद के अंतर्गत साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट सन 2003 फरवरी 12 तारीख को उद्घाटन हुई थी। इस साइबराबाद कमिश्नरेट के अंतर्गत बहुत ज्यादा विकास हुई है। साबिक पोल्यूशन कंट्रोल मेंबर कर्नल प्रदीप रेड्डी ने शमशाबाद और राजेंद्र नगर जोन को मिलाकर शमशाबाद जोन को अलहदा कारपोरेशन बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने शमशाबाद जोन को हैदराबाद जोन में जम करने के फैसले की शदीद मुखालफत की। प्रदीप रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने हैदराबाद, मलकाजगिरी और साइबराबाद जोन को अलग अलग कारपोरेशन बनाने का फैसला किया, लेकिन शमशाबाद को हैदराबाद में जम करना ज़िले के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। शमशाबाद में 17 डिवीज़न हैं, जबकि दीगर जोन्स में 35 लाख आबादी के लिए अलग कारपोरेशन बनाई गई है, लेकिन हैदराबाद में 70 लाख आबादी के साथ जम करना नाइंसाफ़ी है। ఆ జియో ప్రకారము మన ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉన్న గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ని మూడు కార్పొరేషన్లుగా డివైడ్ చేశారు. ఒకటి మల్కాజ్గిరి, ఒకటి గ్రేటర్ హైదరాబాద్, ఒకటి సైబరాబాద్। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने आला हुकाम को हिदायत दी कि बड़ी सनतों में आग के हादसात से बचाव और कारकुनों की हिफाजत के लिए फौरी और सख्त इक़दाम किए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हर सनत के लिए वाज़ेह और जामे हिदायतनामा तैयार किया जाए ताकि पेशगी हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले में सेक्रेटरीट में सिगाची इंडस्ट्रीज़ में हालिया हादसे की जाँच पड़ताल के बाद चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिक़ा हुकाम से हादसा में मरने वालों को दिए गए एक्सग्रेशिया, अदालत के मुकदमात और हिफाजती इक़दाम पर अहदेदारों से रिपोर्ट तलब की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 3 कॉरपोरेशंस में तकसीम कर दिया गया है। कॉरपोरेशन की तकसीम को लेकर तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि MIM को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से ही GHMC को 3 कॉरपोरेशंस में तकसीम किया गया। माधापुर के खानामेट इलाके में सर्वे नंबर 55 में मौजूद मंदिर मौजूद है और इससे अलग कर दुकानें बनी हुई थीं, जिसे हाइड्रा ने गैर कानूनी साबित करते हुए मुनहदम कर दिया। मकामी अफराद के अलावा मंदिर के पुजारियों और मंदिर इंतजामिया के जिम्मेदारों ने हाइड्रा के तरीक़ेकार पर नाराज़गी जाहिर करते हुए सड़क पर धरना दिया। मंदिर इंतजामिया का कहना है कि उन्हें दुकानात को मुनहदम करने से पहले नोटिस देना चाहिए था, मगर नोटिस नहीं दी गई। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान इलाके में कशीदगी देखी गई। हैदराबाद के मुख्तलिफ थानों ने मोबाइल फ़ोन्स छीनने और मुसाफिरों से कीमती सामान चुरा कर ले जाने वाली बैन सूबाई गैंग के खिलाफ कार्रवाई की। इस सिलसिले में मेहदीपट्टनम पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 21 मोबाइल फ़ोन्स और नकद रकम जब्त की। उसी रोज़ अफजलगंज पुलिस ने 3 रक्षा चोरों को गिरफ्तार किया, जो मुसाफिरों को निशाना बनाया करते थे। इस गैंग का एक रुकन जुबैर लाला फरार है। इन मुलजिमान से एक बजाज ऑटो, 2300 रुपये नकद बरामद हुए। गैंग का तरीक़ेकार ये था कि वर्कशॉप में मुसाफिरों को बैठने पर मजबूर करते और नकदी या मोबाइल फ़ोन चुरा लेते थे। जुडिक्शन में 3 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का डिटेक्शन हुआ है। इसमें 2 सेलफोन रिलेटेड केसेस है और एक पिक पॉकेटिंग केस है। निर्मल पुलिस ने सिलसिलावार चोरी में मुलविस गैंग का पर्दाफाश कर दिया। उटनूर थाने के हुदूद में रात के वक्त मुतादिद घरों में चोरी करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम पर पहले से 3 दर्जन मुकदमात दर्ज हैं और इससे कबल वो 2 साल की सज़ा भी काट चुका है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 11.4 तोला सोना और 20 तोले चांदी के जेवरात के साथ एक स्कूटी भी बरामद की। offenses
సో ఉత్తునూరులో గత 1-2 నెలల్లో చాలా థెఫ్ట్ ఒఫెన్సెస్ జరిగినాయి. ఆ థెఫ్ట్ ఒఫెన్సెస్ కోసం మనం ఒక సెపరేట్ టీమ్ SICI ఆధ్వర్యంలో ఒక ఫామ్ చేయడం జరిగింది.